آسٹریلیا میں دہشت گردی کرنے والا ساجد اکرم بھارتی شہری تھا، بھارتی پولیس نے مان لیا۔ آسٹریلوی اخبار اور برطانوی خبر رساں ایجنسی کا انکشاف سامنے آ گیا۔ کہا بھارتی پولیس نے بتایا کہ ساجد اکرم 1998 کے بعد 6 بار آسٹریلیا سے بھارت آیا۔ فلپائن حکومت نے بھی بھارتی پاسپورٹ پر نومبر میں ساجد اکرم کے فلپائن آنے کی تصدیق کر دی۔ آسٹریلوی میڈیا کے مطابق حملاور باپ بیٹے نے فلپائن جا کر فوجی طرز کی تربیت حاصل کی۔ فلپائنی حکام کا کہنا ہے کہ ساجد اکرم بھارتی شہری کی حیثیت سے بیٹے نوید اکرم کے ساتھ 1 نومبر کو فلپائن پہنچا۔ دونوں 28 نومبر کو فلپائن سے واپس چلے گئے، مزید معلومات لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آسٹریلیا نے حملاور سے متعلق معلومات کے لیے بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی سے رابطہ کر کے تفتیش میں تعاون مانگ لیا۔ اس سے پہلے نوید اکرم کے ساتھ کام کرنے والے شخص نے بتایا تھا کہ اس کے خیال میں نوید اکرم کے والد کا تعلق بھارت سے ہے۔ زخمی حملاور نوید اکرم کو اسپتال میں ہوش آ گیا، پولیس نے اس سے بات بھی کی۔ 2 روز پہلے دونوں حملاوروں کی سڈنی کے ساحل پر یہودی تہوار کے ہزاروں شرکاء پر فائرنگ میں 10 سال کی بچی سمیت 15 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ بونڈائی بیچ پر دہشت گردی کے واقعے میں ملوث باپ بیٹے نے کس طرح کارروائی کی؟ عینی شاہدین کے بیانات اور پولیس کی تحقیقات میں نئی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ ایک خاتون نے بتایا اس نے حملاور کو گاڑی سے نکلتے دیکھا، ایسا لگا کہ وہ ٹھوکر کھا کر گرا اور بے ساکھیاں اٹھا رہا ہے، لیکن اس نے بڑی بندوق نکالی اور فائرنگ شروع کر دی۔ خاتون کے مطابق اس نے چیخ کر لوگوں کو بھاگنے کا کہا، لیکن کسی نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا۔ پولیس کے مطابق حملاور باپ بیٹے نے ماں کو بھی سارے منصوبے سے لاعلم رکھا۔ کارروائی سے پہلے گھر سے 20 کلومیٹر دور جگہ کرائے پر لی اور ماں کو فشنگ ٹرپ پر جانے کا بتایا۔ حملاوروں نے بونڈائی بیچ تک جانے کے لیے اپنی گاڑی استعمال کی، جو جون میں حملاوروں کے گھر کے سامنے دیکھی گئی۔ باپ اور بیٹے نے حملے کے لیے فٹ برج سے کارروائی کا آغاز کیا۔ صادق آباد سے کوئٹہ جانے والی مسافر بس سے اغوا کیے گئے تمام 14 مسافروں کو بازیاب کروا لیا گیا۔ ڈی ایس پی او باڑو عبدالقادر کا دعویٰ، کہا بس کنڈکٹر مغوی مسافروں کی صحیح تعداد نہیں بتا سکا تھا۔ ڈاکو نے 19 نہیں 14 مسافروں کو اغوا کیا، جن میں سے 13 مغوی زندہ بازیاب کرائے گئے۔ واردات کے دوران دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر جانے والے ایک اور مسافر کی لاش بھی مل گئی۔ ڈاکو نے مقابلے کے دوران پولیس کی بختر بند پر راکٹ فائر کیے، جس میں ایک پولیس اہلکار زخمی ہوا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر ایف بی آر نے اسلام آباد کی جائیدادوں کا نیا ویلیویشن ٹیبل معطل کر دیا۔ ایف بی آر کے مطابق عوام اور ریل اسٹیٹ سیکٹر نے درج ویلیوز کو حقیقی مارکیٹ ریٹ سے زائد قرار دیا۔ ویلیویشن ٹیبل کے نفاذ سے ریل اسٹیٹ سیکٹر میں ٹیکس پراپرٹی کی اصل مارکیٹ قیمت سے بڑھ گئی ہے۔ وزیراعظم کی ہدایت پر ایف بی آر نے عوام اور ریل اسٹیٹ سیکٹر کے اعتراضات کا جائزہ لیا۔ نظرثانی شدہ ایس آر او کے اجرا تک پرانا ویلیویشن ٹیبل معطل رکھا جائے گا۔ رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت گورنر راج کی دھمکی سمجھ گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو فی الحال اپنے بچاؤ کی پڑ گئی ہے۔ سہیل آفریدی وفاق کے مطالبات کو گنجائش دینے لگے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو پالیسی میں تبدیلی کی بھنک بھی نہیں پڑنے دی۔ پی ٹی آئی اب عملی طور پر علیمہ خان کے کنٹرول میں چلی گئی ہے۔ پروگرام آشا زیب خانزادہ میں بات کرتے ہوئے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا، پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات اتنے بڑے نہیں کہ جماعت کی پالیسی ڈسٹرب کر سکیں۔ بانی پی ٹی آئی نے پارٹی کو تمام فیصلے محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کی مشاورت سے کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اپوزیشن سڑکوں پر احتجاج نہیں ڈائیلاگ چاہتی ہے۔ اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس دیگر جماعتوں سول سوسائٹی کو لے کر متفقہ لاہ عمل بنائیں گے۔ قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب شیرپاؤ سے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنماؤں کی ملاقات۔ میڈیا سے گفتگو میں اسد قیصر نے کہا، آئین عملی طور پر ختم ہو گیا، عدلیہ کمزور ہو گئی، ہمارا مطالبہ ہے کہ 1973 کے آئین کو اصل شکل میں بحال کیا جائے۔ آفتاب احمد شیرپاؤ نے کہا، 1973 کے آئین میں مزید تبدیلیاں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معیشت بھی آگے نہیں بڑھے گی۔ سانحہ اے پی ایس کے بعد نیشنل ایکشن پلان پر تھوڑا بہت عمل ہوا۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا، اب حکومت 28ویں ترمیم لانے کی باتیں کر رہی ہے۔ 28ویں آئینی ترمیم سے ملک میں مزید نقصان ہو سکتا ہے۔ قومی کانفرنس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو بلایا جا رہا ہے۔ 28ویں آئینی ترمیم پر بھی بات کی جائے گی۔
इंसदाद दहशत गर्दी अदालत इस्लामाबाद ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। सूबाई वज़ीर मीना खान आफरीदी और शफीउल्लाह आफरीदी को भी इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई। अदालत की जानिब से मुतअद्दिद बार तलब करने के बावजूद मुल्ज़िमान पेश ना हुए। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी और दीगर अफराद के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर थाना रमना में मुकदमा दर्ज है। बाजोड़ की तहसील सालारसई में पोलियो टीम पर फायरिंग के वाक़े में शहीद पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा पुलिस लाइन सिविल कॉलोनी में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। पोलियो टीम पर फायरिंग के वाक़े में पुलिस एहलकार और राहगीर शहीद हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पोलियो टीम फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत। शोहदा के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। वफाकी हुकूमत ने 11वें NFC अवार्ड के लिए 8 कमेटियां बना दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब काबिल तक़सीम पूल वर्किंग ग्रुप की सरबराही करेंगे। सूबों के वज़राए ख़जाना को भी अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स की सरबराही दी गई है। वर्किंग ग्रुप्स अपने दायरा इख्तियार में उमूर पर सिफारिशात तैयार करेंगे। NFC मुताल्लिक़ दूसरा इजलास आइंदा माह जनवरी के वस्त तक मुतवक्किल। कौमी एयरलाइन की निजकारी का मामला आखिरी मराहिल में दाखिल। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट की कौमी एयरलाइन को कंसोर्शियम को तफसीलात की फराहमी और ताउन करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक चारों कंसोर्शियम ऑफिशल्स का CEO कौमी एयरलाइन और अफसरान के साथ हफ्ते के रोज़ इजलास हुआ। कौमी एयरलाइन और निजकारी कमीशन से यौमिया बुनियादों पर रिकॉर्ड मांगा गया। कौमी एयरलाइन ने कंसोर्शियम को मौजूदा और रिटायर्ड मुलाजमीन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल राउट्स की तफसीलात फराहम कर दी। चारों कंसोर्शियम अपनी पेशकश 23 दिसंबर की बोली में देंगे। सिंध काबीना ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें खरीदने के लिए 96 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। थरकोल रेलवे लाइन के लिए 5 अरब 60 करोड़ रुपए जारी करने का भी फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मंसूबे के तहत इस्लामाबाद इस्लाम कोट से छोर तक 105 किलोमीटर तवील रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। रेलवे लाइन से कोयला थर से कराची समेत मुल्क के दीगर इलाकों तक मुंतकिल किया जाएगा। सिंध हुकूमत और वजारत रेलवे के दरमियान 50% के इश्तराक से रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। इजलास में कराची में IT टावर के लिए तारीखी इमारत की खरीदारी पर भी तबादला ख्याल। सिंध IT टावर के क़याम के लिए निजी कंपनी की इमारत मुंतखब की है। पाकिस्तान और रूस के दरमियान तेल के शोबे में ताउन के माहिदे पर बातचीत जारी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने रूसी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में कहा, दोनों ममालिक की वजारत तवानाई मुमकिना माहिदे पर मुज़ाकरात कर रही हैं। तेल की तलाश, पैदावार और रिफाइनिंग में रूस को महारत हासिल है। दोनों ममालिक पाकिस्तान में एक और स्टील प्लांट लगाने पर गौर कर रहे हैं। पाकिस्तान ने 2023 में रूसी खाम तेल की दरामद शुरू की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ईमान मजारी और हादी अली चट्टा के खिलाफ शहादतें दोबारा रिकॉर्ड करने का हुक्म। जस्टिस आजम खान ने कहा, मेरिट पर जाए बगैर ट्रायल कोर्ट को शहादतें 3 दिन में दोबारा रिकॉर्ड करने की हिदायत कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी से पाक भारत जंग में फोर्सेस के शोहदा के वर्सा की मुलाकात। वज़ीर आला को वर्सा के लिए इमदादी रकम मज़ीद 50 लाख रुपए बढ़ाने, ज़ख्मी एहलकारों के लिए रकम 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का ऐलान। सोहेल आफरीदी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शोहदा के अहल खाना के शाना बशाना है। शोहदा हमारा फ़ख्र हैं, उनके वर्सा का ख्याल रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की कुर्बानियाँ मुल्क और कौम की सलामती की ज़मानत है। वज़ीर आला पंजाब ने बेघर सनती वर्कर्स के लिए नए तामीर शुदा 720 फ्लैट्स की कुरानंदाजी कर दी। सनती वर्कर्स के लिए मजीद 1872 फ्लैट्स 18 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, स्पेशल सनती वर्कर्स की आसानी के लिए उन्हें ग्राउंड फ्लोर पर फ्लैट दिया जाए। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलव्वस पेज 3 न्यूज़ फाई के नाम से चलने वाला एक्स अकाउंट भारत से कंट्रोल होने का इंकशाफ। जाली शनाख्त के जरिए भारतीय अकाउंट मीर यार बलोच के नाम पर 12 पैगाम रसानी में मुलव्वस पाया गया। भारतीय अकाउंट से मुसलसल मीर यार बलोच के नाम पर मनगढ़ंत दावों, तारीखी तहरीफ और भारतीय एजेंडे की तशहीर जारी रही। हाल ही में इस जाली अकाउंट से भारतीय प्रोपेगेंडे पर मबनी एक तवील पैगाम भी सुनाया गया। कमिश्नर कराची और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ। ट्रांसपोर्टर्स का सिंध की सतह पर हड़ताल ख़त्म करने का इम्कान। सेक्रेटरी जनरल गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने कहा, बेशतर मसाइल हल हो गए हैं, माहिदे को तहरीरी शक्ल दे रहे हैं। हॉक्स पे पर ट्रक स्टैंड के लिए 350 एकड़ ज़मीन पर बातचीत जारी है।
ट्रांसपोर्टर्स ज़राए के मुताबिक ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत से भारी जुर्मानों में कमी, गाड़ियों के लोड में इजाफा और हादसे में जाँ भाग शख्स के लवाहिकीन को मुआवजे की अदायगी में कमी समेत दीगर रियायतें मांगी। कराची मलिर जिना एवेन्यू के करीब डंपर और मुसाफिर कोच की रेस में एक मोटरसाइकिल सवार जान से गया। कोच ने एक कार सवार को टक्कर मारी और डंपर ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। डंपर को तहवील में ले लिया गया। कोच ड्राइवर फरार हो गया। कोच की टक्कर से कार को नुकसान पहुंचा, ड्राइवर महफूज रहा। कराची में रवा साल हैवी गाड़ियों की टक्कर से 249 अफराद जाँ बहक हो चुके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अफगान शहरी बख्ती जान को आर्जी तौर पर अफगानिस्तान डिपोर्ट करने से रोक दिया। वजारत सैफरान को दरख्वास्त गुजार के प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड से मुताल्लिक दरख्वास्त पर 1 माह में फैसला करने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है वालिद 1974 से पाकिस्तानी शहरी हैं। वजारत सैफरान और नादरा को दरख्वास्तें दी मगर कार्रवाई नहीं हुई। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब मियाँ मंजूर अहमद भट्टू इंतकाल कर गए। मियाँ मंजूर अहमद भट्टू का ताल्लुक़ हवेली लखा से था। सदर ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सीनियर सियासतदान मियाँ मंजूर अहमद भट्टू के इंतकाल पर दुख और रंज का इजहार। सदर ज़रदारी ने कहा, मंजूर अहमद भट्टू ने अवामी खिदमत और कौमी तरक्की के लिए गिरां कदर खिदमात सर अंजाम दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मरहूम की सियासी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का साबिक़ वज़ीर आला पंजाब मियाँ मंजूर अहमद भट्टू के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की ऑस्ट्रेलिया में पेश आए वाक़े की मज़म्मत। कहा, दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं होता। अक़लियती रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल का कहना था, ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत और आवाम के साथ हैं। दहशत गर्दों को रोकने वाले नौजवान को खिराज तहसीन भी पेश किया। ताहिर अशरफी ने कहा, इंडिया आलमी दहशत गर्दी का मरकज़ बन चुका है। वहाँ अक़लियतों पर मज़ालिम किसी से मख्फी नहीं। बिहार के वज़ीर आला की तरफ से मुसलमान खातून का हिजाब उतारने से वाज़ेह होता है कि भारत अक़लियतों के साथ रियासती दहशत गर्दी कर रहा है। जान की परवाह किए बगैर हमलावर पर झपटने वाले अहमद अल अहमद की शुक्रिया अदा करने ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म अस्पताल जा पहुँचे। खैरियत पूछी, बहादुरी पर दाद दी। ऑस्ट्रेलियाई आवाम की तरफ से भी अहमद का शुक्रिया अदा किया। पौंदाए पेश पर दहशतगर्द हमले में हलाक अफराद को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए साहिल पर लोगों की बड़ी तादाद जमा। शमें रोशन की, फूल रखकर मरने वालों को याद किया। सिडनी का मशहूर ओपरा हाउस मरने वालों की याद में रोशन किया गया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का सिडनी में फायरिंग के वाक़े के मुतासरीन से अफसोस का इजहार। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक बिग बैश लीग में फायर वर्क्स नहीं किया जाएगा। मुतासरीन के लिए खामोशी इख्तियार की जाएगी। खिलाड़ी और ऑफिशियल मैच के दौरान स्याह पट्टियाँ बांध कर मैदान में उतरेंगे। सिडनी सिक्सर्स का भी होम ग्राउंड पर खेले जाने वाले मैच के मौके पर इजाफी सिक्योरिटी तैनात करने का फैसला। सिडनी सिक्सर्स कल एडिलेड स्ट्राइकर्स का सामना करेंगे। गजा में बेघर फ़लस्तीनियों को शदीद सर्द मौसम, तूफ़ानी हवाओं और बारिश का सामना। ठंड की शिद्दत से 2 माह का फ़लस्तीनी बच्चा चल बसा। ख़ैमे तूफ़ानी हवाओं से उखड़ने लगे। बारिश का पानी भरने से बैठने की जगह तक ना रही। इसराइली बमबारी से तबाह गजा के अल-शिफा अस्पताल की छतों से पानी टपकने लगा। एम्बुलेंस और दीगर गाड़ियाँ फंस गईं। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली ने फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुदरादियत की तौसीक़ की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। करारदाद के हक़ में 164 और मुखालफत में 8 ममालिक ने वोट दिया। 9 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। फ़लस्तीनियों पर ढाए मज़ालिम दुनिया की नज़रों से छुपाने की इसराइली हठधर्मी जारी। कनेडियन अरकान पार्लियामेंट के वफ़द को मगरबी किनारे में दाखिल होने से रोक दिया। तर्जुमान नेशनल काउंसिल ऑफ कैनेडियन मुस्लिम्स के मुताबिक इसराइली हुक्काम ने उर्दन की सरहद से मगरबी किनारे में दाखिले के लिए हर मंदूब से एक फॉर्म पर दस्तखत करने को कहा, जिसमें उन्हें तस्लीम करना था कि वो अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरा है। वफ़द ने इसराइली फॉर्म पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। वफ़द में कैनेडियन अरकान पार्लियामान असलम राना, इक़रा खालिद समेत समीर ज़ुबैरी, फ़ारिस अल सऊद और दीगर मौजूद थे। मुसलमान खातून डॉक्टर का नकाब क्यों खींचा? भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ हिरासानी का पर्चा काटने और मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा जोर पकड़ गया। भारतीय सियासी रहनुमाओं, सहाफ़ी और इंसानी हुकूक तंजीमों ने वाक़या शर्मनाक करार दे दिया। अपोजिशन जमात कांग्रेस की तर्जुमान निगहत अब्बास ने कहा, नीतीश कुमार ने ख़वातीन की तौहीन की। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी माफ़ी मांगें। मकबूजा कश्मीर की साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती का नीतीश कुमार से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा।
समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा, नीतीश कुमार का इकदाम शर्मनाक है। भारतीय सहाफ़ी मोहम्मद जुबैर ने कहा, हवासों में होते तो नीतीश कुमार ऐसा ना करते। सहाफ़ी अशोक स्वाइन ने सोशल मीडिया पर लिखा, मोदी के भारत में बदतमीज़ी और इस्लामोफोबिया को सरकारी मंजूरी हासिल हो गई है। इंसानी हुकूक की कारकुन दीपिका पुष्करनाथ ने इसे जिनसी हिरासानी का संगीन वाक़या करार दिया। इंसानी हुकूक की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का कहना है कि किसी अवामी ओहदेदार का हिजाब ज़बरदस्ती हटाना उसकी इज्जत, शनाख्त और खुद मुख्तारी पर हमला है। ऐसे इक़दामात माशरे में खौफ बढ़ाते हैं। भारत में इंसानी हुकूक के रहनुमाओं का कहना था, वाक़े से भारत में अक़लियती ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ पर संगीन सवालात खड़े हो गए हैं। वाक़े के ज़िम्मेदारों के खिलाफ फौरी और शफाफ कार्रवाई का मुतालबा। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने भारतीय सूबे बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के मुसलमान खातून डॉक्टर का नकाब खींचने के अमल को गैर इंसानी कदम करार दिया। मज़म्मती बयान में HRCP ने कहा, नीतीश कुमार का इक़दाम गैर अखलाक़ी है और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़, मसावात और मजहबी आज़ादी के आलमी उसूलों की सरीहन खिलाफ वर्जी है। भारतीय हुकूमत से वाक़े की तहक़ीक़ात और मुतासरा खातून डॉक्टर को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहमी का मुतालबा। HRCP ने कहा, किसी भी औरत के जिस्म, लिबास या मजहबी शनाख्त में ज़बरदस्ती मुदाखलत इंसानी वक़ार की संगीन पामाली है। मुस्लिम खातून के हिजाब को सरेआम ज़बरदस्ती हटाना पूरी मुस्लिम उम्मा के मजहबी जज्बात की खुली तौहीन है। बांग्लादेश की यूनिवर्सिटी में खुदकार सीढ़ियां अचानक तेजी से चल पड़ी। खौफजदा तुलबा छलांगे लगाकर सीढ़ियों से उतरे, चीखते चिल्लाते तुलबा की वीडियो वायरल। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान, ईरान और यूरोपीय ममालिक से अफगानों की जबरी बेदखली रोकने का मुतालबा कर दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि पाकिस्तान, ईरान और यूरोपीय ममालिक से अफगान पनाह गुज़ीनों को गैर कानूनी तौर पर बेदखल किया जा रहा है। अफगानिस्तान में संगीन इंसानी बहरान के बायस वापस जाने वालों को हकीकी खतरात दरपेश हैं। अफगानों को बेदखल करने वाले ममालिक बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी करें। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक रवां बरस 25 लाख अफगान वापस अफगानिस्तान पहुंचे हैं। PSL 11 के मैच मुजफ्फराबाद स्टेडियम में कराने की कोशिश है। स्टेडियम में इंटरनेशनल मैचेस भी कराएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के वीडियो लिंक इजलास में गुफ्तगू। नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची की तामीर नौ के दूसरे मरहले और LCCA ग्राउंड की अपग्रेडेशन की मंजूरी। मोहसिन नकवी ने कहा, श्रीलंकन टूर को जारी रखने का क्रेडिट पूरी टीम को जाता है। PSL रोड शोज की कामयाबी PCB और PSL की पूरी टीम की कामयाबी है। HPL PSL अगले साल 26 मार्च से 3 मई 2026 तक 5 शहरों में होगी। इस सीज़न में 44 मैचेस खेले जाएंगे। हर टीम को कम से कम 10 मैचेस खेलने होंगे। सुपर 4 मरहले में 12 मैच खेले जाएंगे। सुपर 4 मरहले के दोनों ग्रुप्स की टॉप टीम्स प्ले ऑफ में खेलेंगी। प्ले ऑफ में फाइनल समेत 4 मैचेस होंगे। लाहौर कलंदर्स की एक और दरियाफ्त, प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम से मुस्तकबिल का एक और रोशन सितारा ढूंढ लिया। ख़वातीन क्रिकेट में तेज़ रफ्तार बोलर सखर की ज़ेब-उन-निसा की आमद, अपनी स्पीड से सबको मुतासिर करने में कामयाब। नेशनल लीग के फाइनल में भी टीम की नुमाइंदगी की। लाहौर कलंदर्स प्रोग्राम की चीफ सेलेक्टर मरीना इकबाल का कहना है कि ज़ेब-उन-निसा ने पहली मरतबा हार्ड बॉल से खेला था। बिग बैश T20 लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ी शादाब खान की ऑलराउंड कारकर्दगी। सिडनी थंडर्स की जानिब से होबार्ट हरिकेन के खिलाफ 24 गेंदों पर 34 रन्स की इनिंग्स खेली। बॉलिंग में 4 ओवर्स के स्पेल में 2 खिलाड़ियों को आउट किया। शादाब खान की उम्दा कारकर्दगी के बावजूद उनकी टीम को 4 विकेट से शिकस्त हो गई। मैच में सिडनी थंडर्स ने 6 विकेट पर 180 रन स्कोर किए थे। होबार्ट हरिकेन ने हदफ 1 गेंद कबल 6 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 70 रन से शिकस्त देकर अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग में 9 विकेट पर 241 रन बनाए। अहमद हुसैन ने 65 और समीर मिन्हास ने 44 रन की इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में UAE की टीम 38वें ओवर में 171 रन बनाकर आउट हो गई। अयान मिसबा ने 77 रन बनाए। अब्दुल सुबहान ने शानदार बॉलिंग करते हुए 4 खिलाड़ी आउट किए।
दुबई में शुरू होने वाले रोल बॉल वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज, पोलैंड को 4 के मुकाबले में 8 गोल से शिकस्त दे दी। अरीब अली बुखारी का उम्दा खेल, 4 गोल स्कोर किए। सलमान और अहद ने 2-2 गोल बनाए। रोल बॉल वर्ल्ड कप में 15 ममालिक की टीम शिरकत कर रही हैं। पेरिस सेंट जर्मेन और फ्रांस के उस्मान डेम्बले फीफा बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर करार। कतर में होने वाली तकरीब में फ्रांसीसी खिलाड़ी को साल का बेहतरीन प्लेयर करार दिया गया। स्पेन से ताल्लुक़ रखने वाली आइटाना बोनमाटी विमेन बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर करार। बेहतरीन कोच का अवार्ड भी PSG के नाम रहा। पेरिस सेंट जर्मेन के लुइस हेनरिक साल 2025 का बेहतरीन कोच करार पाए। फ्रांस की अदालत ने फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मेन को हुक्म दिया है कि वो एम्बापे को 60 मिलियन यूरोस की अदायगी करे। रियल मैड्रिड के स्ट्राइकर ने गुज़िश्ता माह अपने साबिक़ा क्लब पर पाकिस्तानी 86 अरब रुपए के वाजिबात का केस दायर किया था, जबकि पेरिस सेंट जर्मेन ने एम्बापे के खिलाफ 80 अरब की अदायगी का काउंटर केस किया था। अदालती फैसला किलियन एम्बापे के हक़ में आने के बाद पेरिस सेंट जर्मेन किलियन एम्बापे को पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 19 अरब 80 करोड़ रुपए की अदायगी करेगा। और कमाल अहमद रिजवी को दुनिया से रुखसत हुए 10 बरस बीत गए। मारूफ अदाकार के मुकालमे और किरदार आज भी मद्दाहों को याद।